ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਉਧਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬਿਗਾਸ। ਜਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮਹਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਜਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮਹਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਸਮਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਕਦੇ ਕੰਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਰਮੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੋਭਾ ਹੈ ਜੇ ਤਖ਼ਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਗੰਗਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵਸਤਰ ਆਏ ਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਚਮਕਦੀਆਂ ਸਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਜਦੋਂ ਕਰਮੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਅਵਰ ਮਰਤ ਮਾਇਆ ਮਨ ਤੋਲੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਵਰ ਮਰਤ ਮਾਇਆ ਮਨ ਤੋਲੈ। ਤੋ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਗ ਮੁਖ ਜਨਮ ਬਿਗੋਵੈ। ਭਗ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਰਮੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਰੋਟੀ ਪਚਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਚਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦ ਘਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਦੋਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਗੁੱਬ ਗਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੁੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਮੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉੱਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ। ਆਹੋ, ਉਹ ਕਰਮੋਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਚੋਟ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਮਸਾਂ ਲੰਘਾਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੜਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਥਣ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰੋ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। तो माता जी ने दूसरे दिन तड़के इशनान किया, प्रशादा पानी तैयार करन लगे, नाल बीबियां लग गईयां। प्रशादा तैयार हो गया। प्रशादा तैयार करके टोकरी च रख लिया, जिवें खेतां च लैके जाने आ, गड्ढे विच रख लिया। संगतां नाल तैयार हो गईयां, असीं भी नाल चलांगे, असीं भी चलांगे। गड्ढे दे विच संगतां बीबियां होर संगत वाहवा चढ़ गई, गड्ढा जोड़ लिया। और इस तरह जिस वेले ये गड्ढा या रथ जा रहा है, बीड़ बाबा बुढ़ा जी वाल खेतां विच धूड़ां उड़दियां जा रही हैं। बाबा बुढ़ा जी खेतां 'च काम कर रहे हैं। उन्हां दे कोल एक उन्हां दा सेवादार नौकर साथी वो भी सेवा कर रहे हैं खेतों के विच, कसिया कही कुहाड़ी जो भी काम सी कर रहे न। ते बाबा बुढ़ा जी ने ध्यान मारिया, धूड़ उड़दी आउंदी वेखी गड्ढे दी, ते साथी नूं पुछदे आ ये कौन आ। साथी ने गौर नाल देखिया, कहंदे ये तां गुरु के लगदे आ। तो जदों नेड़े पहुँचे, गड्ढे तो उतर के बाबा बुढ़ा जी वाल गए, तो बाबा बुढ़ा जी अचानक कहने अज गुरु क्या नूं किवें भाजड़ा पईयां आउंदियां, कहो सतनाम श्री। सारियां दा मत्था ठणकिया भी लैण की आए सी ते बचन की हो गया। पर यह भी भले च ही होना है, जे गुर झड़के तो मीठा लागे, बख्शे तो गुर वडियाई। ये तो अगे जाके पता लग्या ना भी ये बचन भी चंगा ही होया। खैर सारियां दा मूँह उदास जा हो गया। बाबे बुढ़े का बचन या सत हुंदा ते ये तां भाजना वाले बचन हो गए। ये क्यों कह दिता बाबा जी ने। तो जिहड़ा नाल सिख सी ना, मैं ये भी साखी नाल जोड़ लवां, वो टेढ़ा जे वेखे आ, गुरु क्या नूं ऐ बोलदा है। बाबे बुढ़े ने सुनिया, वो कहंदे वो तू किवें सूर वांगू घुर घुर करी जांदा, ये साडियां गुरु सिख दी गल है, कहो सतनाम सी। वो सूर बनिया अगे चल के। वो मनुख जो बाबा ने कहा तू किवें सूर वांगू घुर घुर करी जाना, वो अगे जाके सूर की जूनी च पै गया, जिसका हरगोबिंद साहब जी ने उद्धार किया फिर बड़े होके, कहो सतनाम श्री। खैर ये गल फिर सुनावांगे अगे चल के। तो बाबा बुढ़ा जी ने जब बचन किए तो उस वेले सारी संगत के चेहरे उदास हो गए, माता जी भी उदास हो गए। प्रशादा पानी छकाया, पूछे अज किवें आने होए। संगत कहती जी पातशाह ने भेजा सी, गुरु अर्जन देव जी ने, माता जी ने ग्रह बच्चा हो जाए, कोई बख्शिश करो। कहते ला वो बच्चियां का मालक सब कुछ देने वाला घर विच गुरु अर्जन देव है, असी तो गुरु घर के घा ही हाँ, साडे कोल की है। लेकिन वडियाई बहुत वड्डी दिती बाबा बुढ़ा जी नूं, ते सेवा भी उन्हों की घट नहीं। 125 साल जिंदगी दे लगभग सारी जिंदगी इत्थे ला दी आ। कहो सतनाम सी। बचपन तो आए बस फिर गुरु नानक दे होके रह गए। कहते नहीं ये दाता तो गुरु अर्जन देव दे सकते हैं, उन्होंने कोल बख्शा सारियां, वो चाहन तक ही नहीं हो सकता। उतों वापस आ गए। शामां नूं फिर गुरु साहब घर आए दरबार साहब चों। क्यों गंगा बनी गल, कारी बनी जी, असी तो बनी हुई भी बिगाड़े आए। किवें बिगाड़े आए, की हो गया। महाराज जब प्रशादा लैके गए तो जब असी गड्डियां तो उतर के अगे गए तो बाबा जी कहते किवें गुरु क्या नूं भाजड़ा पईयां आउंदियां। महाराज कहते गए किहड़े ढंग नाल सी।
महाराज जी प्रशादा तैयार करके गड्ढे ते रख के ते नाल काफ़ी बीबियां चलियां गईयां, संगतां कहंदी असीं भी जाना, असीं भी जाना, असीं भी जाना। बाबा गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे भरीए जे मंगण जाइए तो मंगतियां वाला भेस धार लईदा। को सतनाम घट्टो घट्ट भेस तां उहो जिहा होवे ना। तुसीं गए तां मंगण हो, चढ़ के गड्डियां रथां ते गए, ऐ मंगण जाईदा किते। माता जी कहते असीं तो बिगाड़ ली, हुण तुसीं सुधारो। फिर असीं किवें जांदे, सानूं दस्सिआ ही नहीं तुसीं, असीं तो फिर आहीं भग गए। कहते चलो ये बचन भी वरतूगा। हुण तुसीं कल नूं आपदे हत्थीं इशनान आदि करके सुंदर नवे वस्त्र पहन के आप आटा पीना, मिस्सा आटा छोले ते कणक मिक्स करके, जिवें खेतां 'च प्रशादा लिजाईदा। आप हथी प्रशादा तैयार करना है, आप दे सिर ते टोकरी रखनी है, ते आप तुर के जाना, गड्ढे ते चढ़ के नहीं जाना, रास्ते नहीं जाना, गड्ढे ते नहीं जाना, तुर के जाना। और ये किसी होर दा हिस्सा नहीं पैना चाहिए। ये तेरी ड्यूटी आ, तू लेना है, तैनों करना पैना है काम। देखो गुरु साहब ने जिथे सानू सेवा करना सिखाया उत्थे अपने परिवार नूं भी बराबर उवें ही रखे। ये नहीं कि मैं मेरा परिवार है मैं सब कुछ दे दिया, ऐसी गल नहीं किते भी आई। तरजीह दिती है परमेश्वर के नाम नूं। राम राय ने शब्द नूं बिगाड़िया कि सतवें पातशाह कहते जा जिधर मूँह आ मेरा कुछ नहीं लगता। इन्हें गुरु नानक के बचन नूं क्यों बदलिया? कौन सतनाम सी, चाहे लिखिया भी नहीं, बोलिया ही आ, बोलिया भी क्यों इस तरह? माता दमोदरी जी ने सिखां नूं जवाब देता। बीबी बीरो के घरे लड्डू बने पे सी, विआह दे, बीबी बीरो के विआह दे। संगत भुखी सी, लड्डू लैन गए 3-4 सिख। माता जी लड्डू ले जाने सी, क्यों भाई? माता जी संगत आई है नवीं ते लंगर मस्त हो गया, तो इस करके संगत नूं छकाउणे। ना ना भाई, ये लड़की दे विआह दे, पहला बरात खाऊगी फिर किसी नूं देने आ। कोई सतनाम सी खाली मोड़ ते। पातशाह कहते की गल लैके नहीं आए? कहते जी माता जी कहते आ पहला बरात खाऊगी फिर संगत नूं देने आ। पातशाह कहते जी संगत नूं नहीं दे सकते, खा सकते, ते बरात भी नहीं खा सकती। ये हुण मुगलों के पैरों हेठां रोलणगे। खो सतनाम सी। भाव इत्थे कोई मोह ममता नहीं है, क्योंकि जिस काम लिए गुरु आया गुरु ने वो काम करना, किसी मोह च नहीं फसिया होया गुरु। को सतनाम सी। दूजे दिन माता जी उस ढंग नाल गए, भावें कि बीबियां ने प्यार विच बहुत कहा माता जी असी चक्की झो दिन्ने आ, चक्की नूं असी घुमा, नहीं मेरी ड्यूटी लाई है। प्रशादा असी बना दिए, नहीं। तुर पे नंगे पैरी माता जी। एक दो बीबियां नाल तुर पईयां, उन्होंने बेनती की टोकरी सानू चुका दिओ। कहते नहीं मैं लैना तो मैनू ही करना पैना, करमी आपो अपनी के नेड़े के। दिता लईए अपना, अनदिता किछ हथ न आवे, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहा। बाबा फरीद जी भी कहते कद तक अपना 12 माहां दे विच कद तक कर्म कमावने, दोष न काहू जोग। तो इस करके बाबा फरीद जी कहते फरीदा लोड़ है दाख बजौरियां, किकर बीजा जट हंडे उन कताएं दा पैदा लोड़े पट। भाव आपो अपने कर्मां दे फल सब नूं मिलदे आ। इत्थे गुरु साहब ने माता जी नूं कहा ते माता जी कहते ये काम मैं करना, मैं इहदा फल लैना है, मैनूं करन दिओ सब कुछ। माता जी आप गए नंगे पैरी। एक दो बीबियां सेवादारियां जिहड़ियां कोल रहिंदियां ओह नाल चलियां गईयां। और जिस वेले खेत विच वड़े तो बाबा बुढ़ा जी कल की तरह खेतीबाड़ी का काम कर रहे आ, तो दूरों माता जी नूं आउंदे देख के सिर ते टोकरी, जिवें खेतां 'च प्रशादा लेके जाते हैं नगरां वाले पिंडां वाले बीबियां, बाबा जी ने धर के कसी आ कही जो भी हथ में सीगा
आके माता जी के सिर तो टोकरी चक ली ते नाले कहने पुत्रा की भुख का माँ नूं पता है, बेबे भुख बहुत लगी सी, को सतनाम सी। माता गंगा जी नूं कहने ये माता नूं पता है पुत्रा की भुख का, अज भुख बड़ी लगी सी, बड़े टाइम ते आए हो, को सतनाम सी। नाले सिर तो टोकरी ला ली ते टाली थले रख ली, को सतनाम सी। हाथ मुँह धो के आके बह गए। माता गंगा जी ने अपने हथी उस टोकरी विचों फिर प्रशादे चके, जो दही मखनी सी आदि वो भी दे के देना कीता। और खेतों के विच गंढा जिहड़ा भन के खाधा जाता, को सतनाम श्री, चाकू नाल नहीं चीरिया जाता। तो जिस वेले माता जी ने प्रशादा फड़ाया, पातशाह जी ने बाबा जी ने छकना कीता। छकते छकते जो गंढा भनन की वारी आई खाण वास्ते, गंढा फड़ के गोडे ते रखिया, गंढा भनन लगे। कहते उस वेले बदलों के विच बिजली लिशकी, को सतनाम श्री। भाव जे कुदरत साथ देवे तो फिर की नहीं हो सकता, कुदरत भी नाल है, एक इशारा हुंदा है। बदलों के विच बिजली लिशकी, गर्जना हुई बहुत ज़्यादा। इतिहास लिखते हैं कि शेर भी गरजिया, को सतनाम, किते नेड़े आवाज़ आई ਜਾਂ बदलों की गर्जना हुई बहुत ज़्यादा। तो बाबा जी ने गंढा भनिया तो गंढे की अंदरली गंढेल बुड़ के हो गई। तो कहने माता जी मैनू लगता है कुदरत की कृपा तेरे ते, ऐसा पुत्र पैदा होवेगा जिहड़ा मुगलों के सिर आए मुक्की मार के आ गंढे वांगू भन दिया करेगा, को सतनाम सी। ऐसी दात तैनू मिलूगी। ये बचन बाबा बुढ़ा जी ने अज कीते। माता जी के चेहरे ते उस वेले नूर आ गया, खुशी आई भी, शुक्र है। बख्शिश भी की और सिरे दी की, को सतनाम सी। और माता जी ने प्रशादा पानी छकाया, हाथ साफ कराए, घर आ गए। उस तो बाद भी माता जी प्रशादा पानी छकाउंदे रहे, बाबा बुढ़ा जी की सेवा चलती रही। समा आया उस दिन तो सही 10 महीनों बाद 1652 बिक्रमी हार वधी एकम सवा पहर तड़के, सवा पहर रहिंदे 12 बजे तो बाद, रात का सवा पहर अजे बाकी आ। धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का अज अपना परसों 25 तरीक नूं इस दिहाड़े ते उन्हां दा प्रकाश होएगा, को सतनाम सी। और गुरु प्यारे हो, उस तो पहला जिहड़ा पहला वचन होया सी हुण ओह वरतिया, अजे जन्म नहीं होया। पंजवें पातशाह जी वो बचन लिखते हैं, आसा महला पंजवा, सतगुर साचै दिया भेज, चिर जीवन उपजिया संजोग। संजोग की हुंदा है? बच्चे का माँ प्यो के घर आना, और बच्चा भी वो आऊगा जिहदी मत सुरत माँ प्यो नाल मिलती होगी, को सतनाम सी। गुरु तेग बहादुर माता गुजरी जी की किन्नी तपस्या, तो उधर रूह है जिन्हें आना है दुनिया में जुल्म नूं खत्म करने वास्ते, उहदी भी बराबर तपस्या है। 10वें पातशाह जी उन्हां दी भी उन्नी तपस्या है। तो उन्ना चिर वो रूहां जन्म नहीं लैंदियां जिन्ना चिर उहो जिहा तपस्वी माँ प्यो ना मिले, को सतनाम सी। तो इधर ऐसा जोधा पुत्र आना सी, ते इधर तपस्वी माता गंगा जी, पिता गुरु अर्जन देव जी महाराज। बच्चा आ गया। इधर की होया, समा बतीत होंदा गया। पृथ्वी चंद दी कर्मों कहती है, तू कहंदा सी इन्हां दे बच्चा नहीं हुंदा,
मैनू पता लग्या ये बच्चा होने वाला गंगा दे। कहो सतनाम श्री, पता लग ही जाता। पिरथी कहना फिर की हो गया, आप मरवा देंगे। कहो सतनाम श्री। पिरथी कहना फिर की हो गया। हुण उहदा पुट्ठा दिमाग चल पिया पिरथी चंद दा। कहो सतनाम श्री। और इसने गुरता गद्दी प्राप्त करने वास्ते सरकार दे नाल संबंध कर लिया। एक सुलही खान होया, एक चंदू होया, एक पिरथी चंद होया। ये सारियां दी इक्को जिही दिमाग सी, माड़ी बुद्धि वाले। ते गुरु प्यारिओ, इसने जहांगीर दे कोले उस मौके दी सरकार है, बेनती की गुरता गद्दी का हक मेरा बनता, मैं हकदार हाँ, मैनू गद्दी दवाई जाए। हुण सरकार भला यह गद्दी दवाऊगी? ये गद्दी तो सरकारां नूं गद्दियां दिंदी आ। कहो सतनाम श्री। ते गुरु प्यारिओ, किते कुदरती इधर सुलही खान चढ़ के आया वा सीगा जरनैल। वो इधर आया सीगा हाला मामला इकट्ठा करन। किते इस नूं मिल गया पिरथी चंद नूं, जान पछाण हो गई, पगवट भरा बन गए। उहनूं कहंदा मैनूं गुरता गद्दी दवाओ, तुसीं अर्जन देव नूं ते गंगा नूं फड़ के अंदर कर दिओ। कहो सतनाम श्री। मैं तैनूं बहुत सरोपे देऊँगा, खर्चा देऊँगा, मैं तेरी फौज की सेवा करूँगा। सुली खान कहता भी हुण तां मैं चलिया माझे चों गाहां तो मालवा इकट्ठा करन मामला, मैं दोबारे आऊँगा कोई ब्योंत बना के। मुड़ गया दोबारे फौज ले करके यह फिर आया गुरु अर्जन देव जी नूं फड़न वास्ते। ते संगतां नूं पता लग गया। जब संगतां नूं पता लग्या भाई सुली खान आ रहा, संगतां ने सतगुरां नूं बेनती की, महाराज सुली खान चढ़ के आ रहे हैं। ये दूसरी बार की घटना है, पहली बार भी आया। जब पहली बार आया तो उस वेले गुरु साहब नूं पता लग्या बाबा बुढ़ा जी का वह वचन गुरु कियां नूं किवें भाजड़ा पईआं आउंदियां, वो पूरा करने वास्ते गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर छड़ दिता। कहो सतनाम श्री। ते माता गंगा जी नूं लै करके गुरु की बडाली चले गए। जन्म उत्थे जाके होया। उधरे मैं आए किया निवास श्री अमृतसर साहिब विखे। गुरु की बडाली जाके चले गए। समा बतीत होंदा गया, नाल शब्द भी पढ़ गए आपां। सतगुर साचै दिया भेज, चिर जीवन उपजिया संजोग। उधरे माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास। माता बड़े खुश होना। गुरु की बडाली विखे इन्हां दिनां दे विच जमिया पूत भगत गोबिंद का, परमेश्वर का भगत पुत्र पैदा हो गया। प्रगटिया सामने लिखिया धुर का, ये प्रगट होना ही सी, धुरों ही लिखिया जिहड़ा। रहाओ दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया। इन्हां दा जन्म 10 महीनों बाद होया। ते जिहड़ा महीना जिहड़ा बच्चा लम्मा समा माता दे गर्भ विच रहिंदा है, उसका शरीर भी बड़ा तंदुरुस्त हुंदा है। कहो सतनाम श्री। ते बाकी बचन है महापुरुषों ने, बाबा बुढ़ा जी वर्गियां ने। गुरु साहब का सपुत्र है। 10 महीनों के बाद कहते साहबजादे ने जन्म ले लिया। मिटिया सोग महा आनंद थिया, गुरबाणी सखी आनंद गावे। हुण संगतां नूं भी खुशी हुई भाई पिरथी चांदी जिहड़ी सोची वो ते पानी फिर गया। कहो सतनाम श्री। परमेश्वर ने अपना जिहड़ा है स्वरूप भेज दिता दुनिया विच। अगला गुरता गद्दी का मालक आ गया, समझो। संगतां नूं भी पता है। उधर तो वधाइयां दित्तियां जा रही गुरु की बडाली विखे, कि उत्थे दित्तियां गईयां वधाइयां, उत्थे वजे शैणे, उत्थे वजे बाजे। गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब कै मन भावे। उन्हां दियां आवाज़ां पिरथी चंद दे कंन च पईयां अमृतसर।
ਕਰਮੋ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਖੀਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਧਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਹੀਆਂ ਮੱਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਭੇਜਤਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਬੋਚ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਗਲੀ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਘਰ ਵੱਲ ਤੋਰਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੋ ਸੱਪ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਭਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਿਰੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਿਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਮੁੱਠੀ 'ਚੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੌਤਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਘਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇੱਦਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਘਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਸਾਉਂਦੇ ਘਸਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫਿਸ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਲਾਲ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਫੜਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸੱਪ ਪਰੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਡੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਜਾ ਕੋ ਰਾਖੈ ਸਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਆਓ, ਆ ਸੱਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੱਪ ਦਿਓ ਪਰੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਈ ਆ, ਉਸ ਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਖਵਾਉਣਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ, ਵਿਉਂਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉੱਤੋਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਚਲੀ ਗਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਦਾਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲੂੰਗੀ। ਬਹਿ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਕੁੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਬਸ ਭੈਣੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਐਂ ਲੋਰੀ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਘੁੰਮਦੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਪਈ, ਚਿਤਵਤ ਭਇਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਂਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਮਗਰ ਦੀ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਨੋ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਭੜਾ ਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਡਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਬੁੜੀ, ਇਹ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾਇਆ? ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਥਣਾ 'ਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਦੁੱਧਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ
गुरु अर्जन देव जी ने फिर बुलाया, महाराज घरे आओ, एड्डी वड्डी घटना घट गई। पातशाह कहने कोई गल नहीं, ਇਹਦਾ संस्कार कर दे। प्रिथी चंद को पता लग्या मेरा पहला तीर भी निशाने ते नहीं लग्या, दूजा तीर भी निफल गया। कोई सतनाम सी। हुण माता गंगा जी पातशाह नूं कहन लगे, पातशाह आपां चलीए इत्थों, अपने पिंड चलीए, इत्थे पता नहीं किहड़ा दुश्मन है अपने मगर पिया होया। कोई सतनाम सी। जानी जान सतगुर तां जाणदे ही है, पर जिन्ना चिर वो भेत संगत विच ना खुले उन्ना चिर कहण दा भी फायदा नहीं। कोई सतनाम सी। ते अखीर साहिबजादे 5 साल के हो गए। इन्हां दिनां तक प्रिथी चंद नूं बड़ा फिक्र पिया, समझ नहीं आ रही मैं मेहरबान नूं गद्दी किवें दबावां। ते उत्थों गुरु पातशाह प्रभात सवेर अंमृतसर आ गए। हुण प्रिथी चंद आके मिलदा, इहनूं मीना कहा इतिहास विच। मीना, मीना की हुंदा? मीणी मझ हुंदी है ना, सिंग थल्ले नूं हुंदे आ उहदे, पर ढुੱਡ मारनों नहीं हटदी। कोई सतनाम सी। इहनूं मीना कहा। ये आउंदा है, भाई साहब तुसीं पिंड आ गए, आ तां बहुत वधिया हो गया, कई साल हो गए सी विछड़िया नूं। गुरु अर्जन देव जी चुप रहिंदे आ, कोई गल नहीं, समा आऊगा। हरगोबिंद साहब जी की पालना पोषणा वास्ते सतगुरां ने एक पंडितां दा मुंडा रख लिया घरे, सेवा संभाल वास्ते। दिने आके वो चकदा है, उही दही खवाउंदा है, उही प्रशादा छकाउंदा है, बड़ा प्यार है दोनों का। प्रिथी चंद ने उन्होंने फिर अपने मगर लाया, घरे सद्दिया, कहना वो तू की करदा? जी मैं साहिबजादे नूं खिडाउंदा हुंदा। की दिंदे आ तैनूं? 500। 500 कोई गल है? एडा भारी साहिबजादा तैनूं 500 ही दिंदे आ बस महीने का? तैनूं मैं जिंदगी भर का खर्चा देऊँगा, तू मेरा माड़ा जिहा काम कर दे। कहना की? बस पहला सौं पा आपदे धर्म की कि गल बाहर ना निकले। उन्हें सौं पाती, लालच विच आ गया वो भी। कहते फिर भी काम तो दस। काम कुछ भी नहीं, आ एक जहर की डली है, इन्हूं संखिया कहते हैं। कोई सतनाम सी। अच्छा इनू घरे लै जा ते इसनूं रगड़ के पुड़ी बन लियाई। कल नूं जदों तू साहिबजादे नूं हरगोबिंद नूं दही खवाउण लग्या ना, वो दुध या दही च मिला के उन्होंने पिया दी। बस तैनूं जिंदगी भर की खर्चा पानी मेरी जिम्मेवारी। कोई सतनाम सी। बच्चा लालच च आ गया, वो संखिया कुट लिया बरीक करके पाउडर, समय नाल साहिबजादे ने चक्या, माता ने दही फड़ाती। अगे तो बैठ के आराम नाल ही खा लेंदे, पर अज चोरी सी कुछ, कोठे ते चलिया गया और कोठे ते जाके उन्हें पग चों कढ़ के पुड़ी विच मिक्स की, उंगल मारी तो साहिबजादे ने खवाउण लग्या तो साहिबजादे ने हाथ नाल परे करता कौला, क्योंकि खुद परमेश्वर है, भावें छोटी उम्र च ही है हजे। कौला परे करता। इन्हें धक्के नाल खवाउणा चाहया, उन्होंने फिर परे करता, मूँह भीच लिया, बंद कर लिया। इन्हें थल्ले बिठा के दोने हाथ फड़ के धक्के नाल खवाउणा चाहया तो साहिबजादे ने उच्ची उच्ची अपना हथियार वरतिया, उच्ची उच्ची रोना शुरू किया। कोई सतनाम ते माता गंगा जी ने आवाज़ सुनी, कुड़े भजो, आ कित्थे रोंदा मेरा साहिबजादा? इधर नूं लग्या सीगा, शायद कोठे ते आ। एक नौकरानी भज के कोठे ते गई, की करदा भाई, रोंदा क्यों है? कहना पता नहीं क्यों रोंदा, मैं दही खवाउणा है, खांदा नहीं। कोई सतनाम सी। चल थले चल, तैनूं माता जी ने सद्दिया। सने दही, हुण थर थर कंबे भी मेरा भेत ना खुल जे किते, मैं दही भी जहर मलाई फिरदा। कोई सतनाम सी। थले आ गए, गुरु अर्जन देव जी नूं सुनेहा भेजिया, पातशाह आ गए। कहने हाँ की हो गया गंगा? पातशाह साहिबजादे नूं अज कोई पता नहीं पेट दर्द है की हुंदा, ये दही नहीं खांदे, रोई जाते हैं। पातशाह पलंगे ते बह गए। घर एक छोटा जिहा कुत्ता रहिंदा सी, बड़ा प्यार पातशाह नूं करदा। जदों जुत्ती पाउंदे पातशाह दे नाल ही तुर पैंदा, जदों आके बहिंदे थल्ले आके मंजे ते बह जांदा। पातशाह कहंदे लिओ मैं खवा के वेखदा। कौला जब साहिबजादे के मूँह नूं लाया दही वाला, उन्होंने फिर धक्कता परे।
कहने चलो छड्डो, बच्चे का मूल नहीं हुंदा, पर अज गल खुलनी सी। उन्होंने कुत्ते नूं पचकारिया, कहंदे उरे आ। कुत्ता सामने आ गया पूछ मार के, उहदा भांडा लिआंदा, उहदे विच दही हलटाती, कहंदे खा ला। उन्हें सुंघिया, इहदी सुंघण शक्ति बड़ी तेज आ, पिछे हट गया। पातशाह कहंदे खा के तां विखा, तेरा मैं जिम्मेवार हाँ, फिक्र ना कर। कहो सतनाम श्री। तो एक बारी खा के तां विखा दे, हुण तजर्बा तो खा के ही होगा ना, पर तेरा मैं जिम्मेवार हाँ, तेरी चूनी मैं कटूंगा। सतगुर के पुचकारन ते कहण ते गल मन के कुत्ते ने दही खा ली, तो खांदे आई वो मरन लगे। कहो सतनूं तड़फण लगे। जदों कुत्ता कदे तड़फण लगे, तड़फदा मर गया, तो साध जे बोले सह सवाए साधका बोलिया बिरथा न जाए। पातशाह कहंदे ओए बामणा, जिवें साडा कुत्ता मरिया ऐ तू मरेगा हुण। कहो सतनाम। बस वो भी डिग पिया, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ चों झग निकलण लगी। माता गंगा जी कहते जी हाँ की हो गया, ये क्यों मर गया? घट्टो घट्ट इहनूं पुੱਛ तां लैंदे भी दही च की पाया। असीं तां दही चंगी भली दित्ती है घरों, इहनूं जिउंदा करो। दुष्ट ब्राह्मण मूआ होए कै रोग। अखीर दुष्ट ब्राह्मण मूआ होए कै सूल, पेट में ਉਹਦੇ भी दर्द शुरू हो गया तो मर गया। माता जी कहते ठीक करो इनू, जिउंदा करो इनू, पुछांगी भी गल की बनी है ये। पातशाह ने जल छिड़के उठ बैठा। पातशाह कहते भी सच्ची सच्ची दस दे भी की कीता दही दे विच। कहो सतनाम। कहना जी जहर पाया। क्यों पाया जी? तुहाडा भरा पिरथी चंद तुहाडे ते बड़ा लगदा है, उन्हें मैनू लालच देता कि मैं तेनू जिंदगी भर का खर्चा देऊँगा, तू बस आ जहर शहबजादे नूं खवा दे। कहो सतनाम श्री। पर तुहाडा शहबजादा तो रब ही है, जिन्हें मैनू इस पाप विच गरकण तो बचा लिया। महाराज माफ़ कर दिओ। कहंदे ऐ नहीं माफ़ हुंदा, उत्थे बह जा कमरे च। हुण पिरथी चंद नूं सद्दिया गया। हाँ बई असी तेरा की बिगाड़िया, तू साडे जवाक दे मगर पिया। कहना मैं की कहता, तू साडे पुत्तर नूं मारन नूं फिरदा। कहदी एवें दूषण लाई जाने हो, एवें नहीं लाउंदे। वो बच्चे नूं बाहर कढ़िया, थर भी कंबण लग्या भी भेत खुल गया लगदा। हाँ दस बई हुण। कहना तू मैनू कल फड़ाया नहीं आ जहर, डली फड़ाई सी मैं कुट के लियाया, मैं दही च पा के इहनूं खवाउणी चाहिए, इहने खाधी नहीं, ये तो मैं तो आप मर गया सीगा। गुरु साहब ने मैनू दोबारी जीवन बख्शिया, ये तेरी गलती है। बस शर्म दा मारिया फिर पिंड छड्ड गया। सुली खान नूं मिलिया, सुली खान ने एक पिंड देता। हुण आपां विचारा इत्थे रोकदे हाँ, अगली विचार करें फिर सरवण करांगे। वो सिख जिहड़ा सूर बनिया, इहदी कहानी भी करें फिर सुणावांगे। जिहड़ा बाबा बुढ़ा जी दे कोले घुर घुर जे करदा सी, बाबा बुढ़ा जी दा बचन हो गया, वो भी किवें बचदा। वो पैरी पै गया सी। मुड़ के सेवक कहंदे बाबा जी तुसीं की कहता? कहंदे हुण तेरा उधार इन्हां दे घरे पैदा होने वाला पुत्र ही करेगा। कहो सतनाम श्री। अजे साहिबजादे होए नहीं, बाबे बुढ़े नाले भी वचन किया सी। खैर जम्मिया पूत भगत गोबिंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया धुर का रहाओ। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावे, सिख संगतां ने पता नहीं किन्नियां सुखां सुखियां। कोई देगा कराई जाता है, कोई पाठ कराई जाता, कोई पाठ करी जाता है, शुक्रिए दे रूप च भी धन परमेश्वर तू बड़ी कृपा की। साचे साहिब कै मन भावै, वधी वेल बो पीढ़ी चाली। फिर पीढ़ी चली इत्थों सोढियां दी, रोगी सी ना पीढ़ी गुरु अर्जन देव ते आके, पर चल पई अज छेवें पातशाह आ गए। कहो सतनाम श्री। वधी वेल वो पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। ते पीढ़ी केवल कुल दी नहीं, धर्म दी भी चला दी। अगे फिर छेवें पातशाह जी दे 5 पुत्र 1 धी हुई। फिर अगे उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी तो अगे फिर गुरु गोबिंद सिंह जी होए। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उन्होंने घर 4 शहजादे ते 5वां खालसा पंथ होया, जिहड़ा कदे भी खत्म नहीं होवेगा। जिहड़ा पिरथी चंद कहना सी ये तां मर जाणगे, मुड़ के आपां ही राज करना। कहो सतनाम। वधी वेल वो पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु दिवाया, जो माता गंगा जी ने मंगिया सीगा वो गुरु नानक ने दे दिता। कहो सतनाम।
मन चिंदिया सतगुरु दिवाया, भई अचिंत एक लिवलाया। चिंतावां दूर हो गईयां एक परमेश्वर नाल जुड़ के। जो बालक पिता उपर करे बहु मान, जिवें बच्चे नूं प्यो ते मान हुंदा है, इन्ना गुरु नूं परमेश्वर ते मान है, गंगा नूं परमेश्वर ते मान है, गुरु ते मान है। कहो सतनाम सिंह। ज्यों बालक पिता उपर करे बहुमान, बुलाया बोलै गुर कै भाण। सिख दे मुख चों बचन भी गुरु की मर्जी नाल निकले आ। गुरु अर्जन देव की मर्जी सी, बाबे बुढ़े नूं वडियाई दित्ती आ, एक रीत चला दित्ती अरदास करन दी। कहो सतनाम सिंह। ये भी तो सिस्टम चलाउणा सी ना समय समय ते। जे सीधा कहंदे गंगा हो जाऊगा, फिर अज आपां नूं कित्थों मिलदा? कहो सत आपां किवें लैंदे? तां एक रीत पाती भी गुरु नानक दे घर जाके अरदास करो। जिहड़ा भी सिख है ग्रंथी है तो अरदास कराओ, तुहाडे कारज रस होणगे। कहो सतनाम श्री। ये दिन बाबा बुढ़ा जी के स्थान पर बड़े ही चढ़दी कला दे नाल कई दिन चलता है, मनाया जाता है। तो दाता उतों तो दुनिया रोज़ ही लैंदी है। बहुत संगत बाबे बुढ़े की अज भी जाती है। प्रीतम जी कहते बुलाया बोलिया गुर कै भाण, गुझी छन्नी नाही बाट। यह पारदर्शक गल है सारी, एक गुझी हुई नहीं, कोई लुकी हुई ढकी हुई नहीं। गुरु नानक तुठा, गुरु नानक खुश होया। किन्नी दात, ये दात गुरु नानक ने खुशी विच आके दिती है। तो फिर बचाउण वाला भी उही आ। गुर पूरे राखिया दे हाथ, प्रगट भया जन का प्रताप। ये दूजे शब्द भी हरगोबिंद बारे लिखे है बई उन्होंने बचाउण वाला भी उही है जिन्हें दिता है। गुर पूरे राखिया दे हाथ, प्रगट भया जन का प्रताप। गुर गुर जपी गुरु गुरु ध्याई, जी की अरदास गुरु पै पाई। तो भी जो चाहना ये कोल अरदास कर दिया कर। कहो सतनाम सी। सानू भी दस दे जो तुसी चाहते हो, इन्हों बेनती कर लिया करो। रहाओ शरण परे साचे गुरदेव, जिन्हों ने सच्चे गुरु की शरण लई। पूर्ण होई सेवक सेव, उन्होंने सेवकों की सेवा प्रवान हो गई। जियो पिंड जोबन राखे प्राण, जिमें हरगोबिंद साहब जी की रक्षा की। इस ते विषय ते भी विचारे दे विच है, क्योंकि गुरबाणी विच बहुत इतिहास भी भरिया होया है, उन्होंने खोलना पैंदा। जियो पिंड जोबन राखे प्राण, कहो नानक गुर को कुर्बान। मैं ऐसे गुरु तो बलिहारे जाना हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वत संतां नूं छेवें पातशाह जी के आने वाले प्रकाश दिहाड़े दियां लख लख बधाइयां। आओ समाप्ति करिए, इत्थे रोकण की आग्या बख्शो। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।